Let's get into the word now. चलिए वचन में जाएंगे। Yes. Today's teaching is called Baptized with Fire. और आज के शिक्षण का जो Wow, शीर्षक my जो है वो है God. आग से बपतिस्मा पाना। Really looks fiery. Hallelujah. Baptized with fire. आग से बपतिस्मा पाना। And the subtitle is what does it mean to be filled with the Holy Spirit? और देखिए उसका अगला शीर्षक जो है कि पवित्र आत्मा से भरे जाने का क्या अर्थ है। Look at somebody and say baptized with fire. Tell your other neighbor what it means to be filled with the Spirit. और चलिए दूसरे पड़ोसी से पूछिए कि आत्मा से भरे जाने का मतलब क्या है। You see, many believers, देखिए बहुत सारे विश्वासी, my first point, write it पहला down. मुद्दा, They stop at salvation. देखिए वे उद्धार पे ही रुक जाते हैं। They stop at salvation like the thief on the cross. और उद्धार पे ही वे रुक जाते हैं, जैसे क्रूस पर चढ़ाए गए जो चोर जो थे वहां पे। Lord, take me into your kingdom. और उसमें से एक ने कहा कि प्रभु मुझे तेरे राज्य में ले ले। Khalas. उसके बाद everything stops. And they never move into the fullness what God has for them. फिर उसके बाद परमेश्वर के पास जो उनके लिए पूर्णता है उसमें कभी नहीं जाते। Salvation prepares you for heaven. और देखिए उद्धार आपको स्वर्ग के लिए तैयार करता है, The baptism of the Holy Spirit लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा prepares you for earth. ये आपको तैयार करता है इस धरती के लिए। Hallelujah. कहे हालेलुया। When you have the baptism of the Holy Spirit, देखिए जब आपके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है you become a warrior. तो आप एक योद्धा बन जाएंगे Witches are scared of you. और तांत्रिक लोग आपसे डरने लगेंगे। Praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो। Are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त? I'm telling you, a man on fire is a dangerous person in the spirit. और एक आग से भरा व्यक्ति जो होता है आत्मा में बहुत ही खतरनाक व्यक्ति होता है। Hallelujah. Hallelujah. Many years ago, कई साल पहले when we were kids, जब हम छोटे बच्चे थे, now today's kids are very smart. देखिए आज के बच्चे लोग बहुत ही होशियार हैं। They teach their elders, Mama, not like this, like this. वे अपने बड़े बुजुर्गों को सिखाते हैं, मम्मा ऐसा नहीं ऐसा नहीं। But we were very simple people. और हम बड़े सीधे साधे लोग हैं। We were angels from Kurla. No? Really, I'm telling you. Very simple people. बहुत ही सीधे साधे लोग। All we knew was running in the streets, running in the gullies here and there. और बस हमें इतना ही पता था कि रास्तों पर हम भागते रहे, गली में यहाँ वहाँ भागते रहे। And our games were very simple. Pakda pakdi, you know. All और that. हमारे जो खेल हुआ करते बहुत ही सरल से आसान से पकड़ा पकड़ी। Come on, hello, are you there right now? आप साथ में हैं? Listen. But there was one box in our area. लेकिन हमारे एरिया में एक ऐसा बॉक्स था And all the uncles used to tell us, और सभी अंकल लोग कहा करते थे सगळीकडे जा, तिथे हात लावू नको. और हर जगह जाओ लेकिन उसे मत हाथ लगाना। Hello, are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? And we children always wondered why. और हम बच्चे लोग हमेशा सोचते थे ऐसा क्यों? And on that box there was a skull over there. और उस बॉक्स पर देखिए ऐसा एक खोपड़ी का निशान होता था। And the uncle used to tell us, इसमें भूत रहता है. और अंकल कहा करते थे इसमें भूत रहता है। Hello, are you listening right now? सुन रहे हैं आप इस Now I know why you're laughing because you're laughing at me, I know. अब समझ आता है क्यों आप हंस रहे हैं? See, I told you I'm a simple person. देखिए आपको पता है सीधे साधे व्यक्ति हैं। So, and we children made many stories because there was a red skull on that and two bones like that. लेकिन देखिए बच्चे ऐसे बहुत सारे ऐसे कहानियों को सुने थे कि देखिए उस वो खोपड़े का निशान जो है उस पे दो लाल सी हड्डियों का And निशान below that was written 440. और उसके नीचे जो है लिखा होता था 440। And later on, you know, we understood बाद में जाके हमें समझ में आया that was an electric box. कि वो इलेक्ट्रिक बॉक्स था। Hello, how many of you following me ये तो right समझ रहे now? हैं इस वक्त। But in the same way, लेकिन उसी तरह से a Christian who carries the anointing of the Holy Spirit एक मसीह जो पवित्र आत्मा के अभिषेक को लिए होता है is like a danger for the devil. वो शैतान के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। Reinhard Bonnke used to say, in hell there is a notice board that says, touch everyone, don't touch this fellow. और रेनल्ड बॉन्की जैसा कहा करते थे कि नर्क में एक तरह का ऐसा नोटिस वहां पे लिखा हुआ है कि किसी को भी छू लो लेकिन इस व्यक्ति को मत छूना, Because if you touch this fellow, क्योंकि अगर इस व्यक्ति को तुम छुएगे something will happen to you. कुछ तो हो जाएगा तुम्हें। Somebody shout an amen, somebody. बिल्कुल चिल्लाए आमीन। Hallelujah. हालेलुया। A spirit-filled, baptized Christian, fire-filled, baptized Christian is a danger to the devil. और एक आत्मा से भरा हुआ आग से भरा हुआ मसीह जो होता है शैतान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। The testimony of the devil will be, Paul I know, take your name, everyone say, the devil knows. Hallelujah. और देखिए आपकी गवाही यह होगी कि पौलुस को मैं जानता हूं और फिर आप अपना नाम लीजिए, शैतान ऐसा कहेगा कि वो आपको भी जानता The है। devil will know you शैतान आपको जानेगा by name. आपके नाम से। How many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं इस वक्त। He's not worried about that fellow fallen in the gutter. Hey, मारेगा, छोड़ेगा नहीं. You know, वो उस व्यक्ति के बारे में देखिए उसको कोई फिक्र नहीं होता जो पी के गटर में गिरा हुआ है, वो धमका रहा है, he's not bothered. उसकी परवाह नहीं होती, But he's scared of you. लेकिन आपसे वो डरेगा। So this baptism of the Holy Spirit, today I want you to listen very carefully. तो पवित्र आत्मा का ये बपतिस्मा आज चाहते हैं कि आप ध्यान से सुनें। It's not only for pastors, it's not only for apostles and prophets, it's for everyone. और देखिए ये सिर्फ पासवानों के लिए या प्रेरितों के लिए या भविष्यवक्ताओं के लिए ही नहीं, ये सभी के लिए है। It's God's design for every child of God. परमेश्वर ने देखिए ये तय किया है कि उसकी हर एक संतानों के लिए हो जाए। Hallelujah. Hallelujah. Go to Matthew chapter 3 and verse 11.
चले जाएंगे मत्ती का 3 अध्याय उसका 11वां वचन। There was a man of God called John the Baptist. और देखिए परमेश्वर के जन हुआ करता था जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा And दाता। he said, और उसने कहा He will baptize you with the Holy Spirit and fire. उसने कहा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Lift your hand and say, The Lord will baptize me with the Holy Spirit and fire. अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मुझे बपतिस्मा देगा पवित्र आत्मा और आग से। Say that again. फिर से कहें He will baptize me with the Holy Spirit and fire. वो मुझे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Hallelujah. Hallelujah. Yesterday I told you कल आपको बताए about the wind and the fire. आंधी के बारे में और आग के बारे में। Go and listen, go and learn that teaching. और जाकर उस शिक्षण को सीखेगा। You see, the Lord not only takes away the sin, और देखिए प्रभु सिर्फ पाप को ही दूर नहीं करता, He immerses you in the Spirit. वो आपको आत्मा में डुबो लेता है। He immerses you in the supernatural fire. और देखिए वो आपको अलौकिक आग में डुबाता है। Hallelujah. हालेलूया। You see, yesterday I told you the wind, hello, देख कल आपको बताया आंधी will remove certain things from your life. और आपकी जिंदगी में से कुछ चीजों को निकालेगी। Come on. There'll be a separation. The wind will separate the wheat and the chaff. और देखिए ऐसा अलग किए जाने वाली प्रक्रिया जैसे होगी। देखिए वो आंधी जो है वो धूल मिट्टी या कहे भूसे को बाहर ले जाएगी, उड़ा देगी। भूसे को बाहर लेके जाएगी और क्या रहेगा? गेहूं। जोर से बोलिए। मुंह घर पे छोड़ के आया क्या? सुनिए इस वक्त गेहूं एक जगह पे रहेगा। But now God doesn't stop there. लेकिन परमेश्वर वही नहीं रुकता। He says, I will send the fire. वो कहता मैं आग को भेजूंगा। Now everyone say inner impurities. अंदर की शुद्धता Nobody knows about that. कोई उसके बारे में नहीं जानता। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You see, when people come to the Lord, देखिए जब प्रभु के लोग आते हैं they will tell you, वह कहेंगे पहला मैं दारू पीता था, पहले मैं दारू पिया करता था, अभी दारू नहीं पीता है, सब लोग ताली बजाता है। Come on, yes or no? पहला मैं पत्ता खेलता था, अभी पत्ता नहीं खेलता है, बाइबल पढ़ता है। Hallelujah. Those are things that are seen outside. और ये वो चीजें हैं जो बाहर दिखती हैं। Hello, 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 hello. सुनिए पहला मैं तंबाकू घसता था, अभी शैतान को घसता है। Hallelujah. Are you listening right now? People shout, wow, 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 wow. क्या लोग आदमी? चिल्लाते हैं क्या बहुत बढ़िया। These things are seen outside. ये सारी चीजें बाहर दिखती हैं। That is only the wind. ये सिर्फ एक वो आंधी है, The wind of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आंधी। Come on, hello, are you there right चलिए, now? क्या आप साथ में हैं Yes. इस वक्त? पहले मैं बहुत गाली देता था, सब पूरा खानदान को याद करता था, माँ बहन बाप। हेलो, कम ऑन नाउ। हमारा गाली ऐसे रहता ना, कुछ झगड़ा हो गया तो माँ को बीच में लेके आता। कम ऑन नाउ, हेलो, आर यू देयर? क्या साथ में हैं अभी आप? गाली नहीं देता, अभी गाली हालेलुया आता है मुंह से। कितना भी मारेगा हालेलुया, आमेन। रिक्शा वाला नहीं जाएगा तो भी बोलता है गॉड ब्लेस यू। होता है कि नहीं ऐसा? नहीं होता है तो बोले होना चाहिए भाई। प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रभु स्तुति हो। कोई लोग हंस नहीं रही, हाँ? You need deliverance, हाँ? So the wind removes these things from our lives. तो आंधी जो है हमारी जिंदगी में से इन चीजों को निकालती है, But there is a deeper level लेकिन एक गहरा स्तर भी है, that is called the fire. वो है आग। Lift your hands and say, fire of the Holy Spirit, चलिए अपने हाथ उठाकर पवित्र आत्मा की fall आग upon my life. मेरे जिंदगी पर आए। And this is what the Lord is speaking about. और यही तो प्रभु कह रहा है। The second point, write it दूसरा down. मुद्दा लिखिए। What is the baptism of the Holy Spirit? Pastor, can you tell me in simple ways? Yes. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? पासवान जी कुछ सरल भाषा में आप सिखाएंगे? The word baptism is the Greek word baptizo. और देखिए बपतिस्मा ये शब्द का जो अर्थ जो है यूनानी शब्द है बैप्टिसो। Everyone say baptizo. सभी लोग कहते हैं बैप्टिसो। What does it mean, baptizo? और ये शब्द बैप्टिसो का मतलब क्या है? It means to immerse yourself inside something. इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को किसी चीज के अंदर डुबा लेते हैं। Hello, are you listening, church? क्या आप हैं यहाँ पे? To immerse yourself into something completely. और किसी चीज में अपने को पूरी तरह से डुबा लेना। It is one thing to drink water. और देखिए एक बात ये होती है कि आप पानी पीते हैं, The water is inside of you. अब देखिए पानी आपके अंदर है। And it's one thing और दूसरी बात होती for है you to go in the pool of the water. आप सीधे जो पानी के जो पुल में चले जाते हैं। Come on, hallelujah. Now the word baptizo also comes. Now listen, please write this down carefully. अब ध्यान से सुनिए और लिख लीजिएगा। It comes from the, a place where they used to dye the clothes. और देखिए- D-Y-E, not D-I-E, okay? Dye the clothes. So when you dye the clothes, you have to immerse those clothes into that color. Yes or no? Yes. देखिए जब वो कपड़े को जब भिगाना होता था, देखिए उस रंग में उनको डुबाया जाता था। Yes. And now the clothes take on the color of that dye. Come on, yes or no? और फिर कपड़ा जो है देखिए उस डाई का कलर यानी रंग ले लेता था। So when a person is immersed in the Holy Spirit, तो जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा में डूबा गया होता है, he takes on the nature of the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा के स्वभाव को ले लेता है। Somebody shout hallelujah. चले कोई चिल्लाए हालेलुया। That is what is the baptism of the Holy Spirit. और यही कहलाता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Hallelujah. Hallelujah. That's why Paul said, इसलिए पौलुस कहते हैं if any man यदि कोई मनुष्य be in Christ, मसीह में है, in Christos, the anointed one, क्रिस्तोस यानी अभिषेक जन्म है, he's a new creation. तो वह एक नई सृष्टि है।
Come on, how many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं? Just you're not praying, Lord Jesus, I receive you. No. If any man यदि कोई मनुष्य be in Christos, in the Christ, the anointed one, अगर क्रिस्तोस यानी मसीह अभिषिक्त जन्म है, he's a new creation. तो वह एक नई सृष्टि है। तुम्हारा बोलना, आपका बोलना, तुम्हारा सोचना, सब कुछ बदल जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? This is the level of the baptism of the Holy Spirit. और यही तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का स्तर है। Many people then they don't go to that area. देखिए बहुत सारे उस क्षेत्र तक नहीं जाते हैं। Baptism in the Holy Spirit means to be immersed in the presence, the power, and the person of the Holy Spirit. See, I tell you, person. Everyone say person. Person means taking on the nature of that person. और बपतिस्मा का मतलब है जैसे कि आप उसकी उपस्थिति में सामर्थ और उस व्यक्ति के कहें आप स्वभाव को ही ले लेते हैं। Is anybody understanding right now? तो समझ रहे हैं इस वक्त? Salvation gets the Spirit in you. और देखिए उद्धार जो है आत्मा को आपके अंदर लाता है। Baptism of the Holy Spirit gets the Spirit on you. लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है यह आत्मा को जो आपके ऊपर लाता है। Hallelujah. Salvation gets the Spirit in you. उद्धार जो है आत्मा को आपके अंदर लाता है। That makes you son of the Lord, son and daughter of Jesus. और ये जो है आपको In प्रभु you. यीशु मसीह का बेटा बेटी बना देते हैं। But when the Holy Spirit comes on you, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है you become a warrior. तो आप एक योद्धा बन जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Look at somebody and say, "Tu योद्धा लग रहा है भाई." Hallelujah. अपने पड़ोसी को Come देखकर के आप योद्धा दिख रहे हैं। on. Hallelujah. हालेलुया। You are a warrior, not a warrior. आप एक Hallelujah. योद्धा हैं, चिंता करने वाले व्यक्ति नहीं। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Yes, you become a warrior. जी हाँ, आपको योद्धा बनने की जरूरत है। पहला शैतान तुमसे डरता था, अभी तुम बोलते निकल तेरी तो निकल। शैतान की पूंछ दिखता तुम उसकी पूंछ खींचते हो। कोई बोलता भाई मत छू ले, भाई मत छू ले। तू बोलता कैसे नहीं छू ले? तेरी तो निकल बाहर यीशु के नाम से। Is anybody listening over here? कोई सुन रहे हैं यहाँ? Yes. That is a warrior. और Look ये at- योद्धा है। Today tell your neighbor, don't get scared of the devil. आज पड़ोसी से कहें शैतान से मत डरना। You are a warrior. आप एक योद्धा हैं। I want you to study this properly. कोई लोगों को कुछ ज्ञान नहीं इसके बारे में। चाहते हैं कि चर्च इसका में अच्छे आते से हैं, अध्ययन करें। चर्च में जाते हैं कैसे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की, बस उतना ही। पास्टर इधर हाथ रखो, इधर हाथ रखो। पिछले साल आपने इधर हाथ रखा, अच्छा लगा। अभी इस साल इधर हाथ रखो। अरे थाई मसाज केंद्र है क्या भाई? नहीं, पास्टर को ऐसे बना दिया। पास्टर जी थोड़ा सा क्या पास्टर जी भाई, अब तेरा समय आ गया हाथ रख के तो लोगों को चंगाई करने का। Praise the Lord. बोले प्रभु की स्तुति हो। Are you following me right now? आप साथ में हैं इस वक्त? Yes, go to Acts chapter 1 verse 8. चलिए जाएंगे प्रेरितों के कामों की पुस्तक पहला अध्याय 8वां वचन। See what it says. देखिए वो क्या But कहता है। you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। कैसे सामर्थ को पाओगे? जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा। तो that is the baptism of the Holy Spirit. यही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Church, this is so important. और कलीसिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। So important. बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। Many believers, बहुत सारे मसीह they विश्वास have received Jesus. उन्होंने यीशु को पा लिया है। मैं मसीह हूँ, मैं विश्वासी हूँ। अरे ठीक है भाई, तुम मसीह है, विश्वासी में ठीक है, अच्छा है। लेकिन क्या पवित्र आत्मा तुझ पर आया है? नहीं। तू रोज संडे को हिलते रहता है, रोज संडे को गिरते रहता है, लोग तुझे उठाते रहते हैं। बोले संडे को गई थी, वापस सैटरडे को आई अंदर। कितने लोग समझ रहे हैं? बाजू वालों को हंसना पाप नहीं है। अपने पड़ोस को बोलिए। हाँ? तो जो स्टार्ट मात्र को छोड़ के गई थी शनिवार को, वापस जाने दो अभी। सोमवार को वापस आई, वो घसने वाली आत्मा, वो पिचकारी वाली आत्मा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जब बपतिस्मा होता है, होली स्पिरिट का बपतिस्मा होता है, तो पिचकारी वाली आत्मा कभी नहीं आएगी वापस। कब जो जोर से बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। वो तंबाकू वाली आत्मा कभी नहीं आएगी वापस। जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रभु की स्तुति हो। कम ऑन, जोर से बोलिए जोर से कहें हालेलुया। हालेलुया। You see, Lord Jesus, आप देखते हैं प्रभु यीशु। give me Luke chapter 1 verse 35. चलिए जाएंगे लूका का पहला अध्याय 33वां Now वचन। people will say, I don't need the baptism of the Holy Spirit. और लोग कहते हैं देखिए मुझे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत नहीं। मेरे अंदर यीशु है। अच्छा लगता अमिताभ बच्चन है मेरे अंदर यीशु। नहीं। Listen. सुनिए Luke chapter 1 verse 35. लूका का पहला अध्याय 35वां वचन। See, this was Jesus. देखिए ये यीशु की बात है। Look what it says. देखिए यहाँ That holy one which is to be born will be called the Son of God. और वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Jesus was born of the Holy Spirit. और हम देखते हैं यीशु पवित्र आत्मा से जन्मे।
But लेकिन though he was born of the Holy Spirit, हालांकि वो पवित्र आत्मा से जन्मे थे, hello. सुनिए, Though he was born of the Holy Spirit, हालांकि वो पवित्र आत्मा से जन्मे थे, he still needed the baptism of the Holy Spirit. उन्हें फिर भी पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत पड़ी. Come on, hallelujah. Yes, he was getting baptized in the Jordan. और देखिए यरदन नदी में पानी का बपतिस्मा ले रहे थे, Heavens opened. स्वर्ग खुल गया, Holy Spirit came upon him. पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया. Come on, hallelujah. हालेलुया. The sermon he delivered, he said, the Spirit of the Lord is upon me. पहला संदेश जो उन्होंने प्रचार किया वो ये था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है. If Jesus needed the baptism of the Holy Spirit, अगर यीशु को पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की इतनी जरूरत पड़ी, how much more you and I need the baptism of the Holy तो Spirit? कितना ज्यादा आपको और मुझे हमें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत पड़ेगी. Today, let your amen be louder. आज होने Hallelujah. दो आपका आमेन जोर से हो. Amen. सुन रहे हो ना? Your amen should be louder. आपका आमेन बुलंद आवाज में होना चाहिए. Today you must cry out to God and say, Lord, I need the baptism of the Holy आप Spirit. आपको परमेश्वर पुकारते हुए कहना है कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत है. Lift your hand and say, I need the baptism of the Holy Spirit, Lord. अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की Come on, जरूरत begin है. to pray right now in the name of चलिए Jesus. प्रार्थना करना शुरू करें यीशु के नाम If में. Jesus needed this baptism of the Holy Spirit, lift your hands and begin to pray. Say, Lord, I need it right now. अगर यीशु को पवित्र आत्मा Some की prayer बपतिस्मा की warrior, जरूरत पड़ी, begin to raise your hand and pray right अपने now. हाथ उठा प्रार्थना करें प्रभु मुझे भी चाहिए ये बपतिस्मा. In प्रार्थना the करें name of Jesus. यीशु के नाम Young में. children, raise your hand and say, Lord, I need that fire. Come, Lord, with your fire in the name of Jesus. नौजवान बच्चों प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वो आग की जरूरत है. प्रभु तेरे आग को उंडेल दे हमारे ऊपर. I'm not looking at those people who जो हाथ उठा के इधर उधर देख रहे हैं, but really those people who are praying, raise your hand and pray right now. और जो हाथ उठा के यहाँ वहाँ देख रहे हैं उनकी परवाह नहीं है, लेकिन हाथ उठाएं प्रार्थना करें इस समय. Holy Spirit fire rest upon us. पवित्र आत्मा की आग हम पर ठहर जाए In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Lord, open our eyes and ears to receive this word. और प्रभु हमारे आंख और कानों खोल दे इस वचन को ग्रहण Some करने के young लिए. men, young women, raise your voice. नौजवान युवक युवतियों अपनी आवाज ऊंचा उठाएं. Don't pray like your neighbor, pray like a warrior. अपने पड़ोसी के जैसा नहीं योद्धा के जैसा प्रार्थना करें. Pastors begin to pray right now. आसमानों प्रार्थना करना शुरू करें. Leaders begin to pray right now. अगुवे लोग प्रार्थना करना शुरू करें. Lord, I need the baptism of the Holy Spirit. और प्रभु हमें तेरे बपतिस्मा की जरूरत है. Those are watching us begin to pray. जो लोग देख रहे हैं प्रार्थना करना शुरू करें. Lord, we need the baptism of the Holy Spirit. और प्रभु हमें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत In है. the name of Jesus. यीशु के नाम में. Somebody shout a hallelujah. चले कोई तो चिल्लाएंगे I said हालेलुया. hallelujah. हालेलुया. The third point. तीसरा मुद्दा. What is the purpose of the baptism of the Holy और Spirit? देखिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का उद्देश्य यानी मकसद क्या है. You see, everything in the kingdom of God has a purpose. आप देखिए परमेश्वर के राज्य में हर एक चीज का एक उद्देश्य मकसद होता है. Come on, yes or no? आया नहीं. The Holy Spirit is not about goosebumps. और देखिए पवित्र आत्मा रोंगटे खड़े करने के बारे में नहीं. रोंगटे है like that, रोंगटे खड़े. देख पवित्र आत्मा देख बाल खड़े को देख. अरे तेरे बाल खड़े करने के लिए पवित्र आत्मा आता है क्या? कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इन्होंने पब्लिक देख anointing आया, देख anointing. कैसा मालूम है? देख बाल खड़ा हो गया. ठंडी से भी बाल खड़ा होता है. Come on now, hello. चलिए अब हमारा एक one of our members we had come to with us somewhere I think in Dubai. No, some years back in Jordan. और कुछ साल पहले जॉर्डन में. So there was a lot of cold over there. और वहाँ बहुत ठंडी पड़ रही थी. So he came out तो बाहर आए. and his hair was like that. बाहर एकदम ऐसे खड़े. They were they're putting gel and whatnot to make that fellow's hair sit. You have that hairstyle, it's a cock style, like this. Come on, yeah, I'm telling you, Jordan. It was so cold. बहुत ही ठंडी पड़ रही थी. उसको जेल लगा है, वो भी ऐसा कड़क हो गया. So the Holy Spirit is not about, making your hair, stand, तो पवित्र आत्मा देखिए आपके बालों को या रोंगटे खड़ा करने के लिए नहीं. No. It is much more than that. ये उससे बढ़कर है. It is not just for an emotional feeling. और ये देखिए भावनात्मक आपको कुछ महसूस हो रहा है ऐसा भी नहीं है. It is for these reasons. Write it down. The first one. और पहला लिख लीजिए. It gives you, the baptism of the Holy Spirit gives you the power to witness. और देखिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है आपको गवाही देने की सामर्थ देता है. बाजू वाले से कहो गवाही देने की सामर्थ देता है. नहीं बोल, जोर से बोलिए. और एक बार बोलिए. गवाही देने की सामर्थ देता है. Sometimes कभी-कभी we compromise our faith. हम अपने विश्वास के क्षेत्र में देखिए हम समझौता करते हैं. Come on, hello, are you listening right now? If there are 4 or 5 people drinking, अगर देखिए 4-5 लोग शराब पी रहे हों and you are Christian, और आप एक मसीही हैं, अरे लेना. वो कहेंगे अरे लेना. एक्चुअली मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन तू बोल रहा है इसलिए थोड़ा सा लेता हूँ. अरे क्या हो गया तेरे को? You see, suddenly you compromise. और देखिए अचानक क्या होता है कि आप समझौता करने लगते ज्यादा लोगों को उस अलग रहेंगे और तुम अकेले रहोगे ना, you compromise. हैं. Because you fear what will people say. क्योंकि आपको डर लगने लगता है लोग क्या कहेंगे. Tell your neighbor, लोग क्या कहेंगे. अपने पड़ोसी को बोले लोग क्या कहेंगे. लोगों का भी सोचना पड़ता है ना. पड़ता है ना. नहीं सोचना पड़ता है भाई. यही तो लफड़ा है.
लोग आज बोलेंगे ऊपर चढ़, कल तेरे को गाड़ देंगे. याद रखो मैंने क्या बोला है. You see church, आप देखते कलीसिया, when you working in a place, जब आप किसी जगह पे काम करते there is हैं, a lot of immorality. देखिए बहुत सारे वहां पे गलत काम हो रहे हैं And you know, you also now are there. और आप भी वहां होते हैं And they are doing some all nonsense. और सब बेतु का काम वो कर रहे And हैं you are also sitting. और आप भी बैठ के हे करते हैं. You know why you do that? आप जानते क्यों करते हैं आप ऐसा? Because you don't have the power to witness. क्योंकि आपके पास गवाही देने की सामर्थ नहीं है. Pastor, it's easy for you to say, no sir, I went through it. और ये आपको कहने के लिए आसान नहीं जनाब. You see, when I was working, देखिए जब काम पे करके क्या करते I used to work in an advertising agency. एडवर्टाइजिंग जो विज्ञापन I के started my career as a media executive. और अपने करियर की शुरुआत के लिए मीडिया एग्जीक्यूटिव के रूप में. Listen to this. And as a media executive, we used to get these free magazines of all dirty stuff. और मीडिया के Hello, hello, hello. देखिए No, गंदी don't चीजों ask का me which free magazines. magazine मिला करता Don't था. write it down, okay? Yeah. So these fellows used to look at those magazines. तो लोग जो है इन मैगजीनों को देखा करते थे And they used to, during the lunchtime, Dekhna, Michael, do You know what I used to tell them? जाते हैं पासवान जी क्या कहते थे, My God is holy. मेरा परमेश्वर पवित्र है. There were Christians also. And when I used to tell them, they used to get very angry on me. So, our God is not holy. I said, I don't know. I didn't say anything about anybody. किसी के बारे में कुछ नहीं कहते थे. Hello, are you listening right now? I'm talking about Christians. मसीह के बारे में कह रहे हैं. They used to get very annoyed. उनको बहुत ही गुस्सा है. Who do you think you are? तुम अपने आप को क्या सोचते हो? I said, I don't know. I said, I don't know what to say. Because in my Bible it is written, मेरे बाइबल में लिखा है the Lord is holy. प्रभु पवित्र है. Hello, are you following me right क्या now? समझ रहे हैं इस वक्त? And this news, they used to teach me Father Michael. और वे इनको जैसे एकदम चिढ़ाया करते So थे. much Father so Michael that को. my boss used to say, Father Michael is come. My boss, so everybody used to teach me Father Michael. और हर कोई चिढ़ाया करते थे फादर माइकल बोल के. Yes. But there was one thing. लेकिन एक खास बात थी. You know, when the monies would not be released in the company. लेकिन जब कंपनी में पैसे छूटते नहीं थे, Come on now. Boss used to come. You know, the boss used to come early morning in the round, you know. बॉस He एकदम used to come, Father Michael, money is not come. Tell your Jesus to pray. You know what I used to tell my boss? Don't worry, boss. I will tell Jesus to pray. Are you listening right now? If anybody is to fall sick, कोई बीमार पड़ता था, I tell that Father Michael to pray, man. So they used to make fun of me. देखिए मजाक उड़ाने के लिए No, they used to make fun of me. वे मजाक उड़ाया करते थे इनका. But they knew लेकिन उन्हें ये भी पता था that this man कि ये व्यक्ति is different. ये अलग है. I'm telling you, church. कह रहे हैं आपसे कल. I'm telling you. कहते हैं In earlier in my company, I used to take the Bible inside. I used to go in the toilet and read. और पहले के दिनों में ऐसा होता था कि बाइबल को जो टॉयलेट में लेके जाके वहां पढ़ते थे. And people used to know this fellow is in the toilet reading the Bible. और लोगों को पता होता था कि ये व्यक्ति जो टॉयलेट में गया बाइबल पढ़ So रहा much so they said, "अरे toilet में मत बैठ, बाहर ही बैठ तू अभी." है. इतना ज्यादा फिर वो कहने लगे अरे अंदर बैठने की जरूरत है, बाहर ही बैठो आप. You see the power to witness. आप देखते हैं देखिए गवाही देने की सामर्थ. Look at somebody and say the power to witness. किसी को देख रहे हैं गवाही देने की सामर्थ. The power to say no comes from the Holy Spirit. और ना कहने की सामर्थ Come पवित्र आत्मा से आता on, है. hallelujah. कहे हालेलुया. Otherwise you'll flow. सब जन बोलो बह जाओगे भाई. नहीं तो आप बह जाएंगे. ए अपने पड़ोसी से कहो बह जाओगे. सब लोग कर रहे हैं पास्टर, हमको तो करना ही पड़ेगा ना. नहीं सर. That is a witness. That is a witness. Look यही at तो गवाही है. Acts chapter 1 verse 8. देखिए प्रेरितों के कामों की पुस्तक पहला अध्याय 8वां वचन. See, he said, you shall receive power. For what? You shall be witnesses to me. I like that media team. Keep it up. You shall be witnesses to me. Where? In Jerusalem, in Judea, Samaria, and to the end of the earth. और देखिए आगे लिखा है तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे. Your lifestyle आपकी जीवन शैली will show to people लोगों को दिखाएगा that you are belonging to Jesus. कि आप यीशु के हैं. Lift your hand and say, I belong to Jesus. अपने हाथ उठा के मैं यीशु का Come हूं. on, everybody say, I belong to Jesus. चलिए सभी लोग कहेंगे मैं यीशु का हूं. Yes. जी हाँ. In my wedding, पासवान जी की शादी में there was so much of pressure. और बहुत सारा दबाव था इन पर. Now you think you come from a family. I also, मैं ऊपर से नहीं टपका सर. कोई लोग सोचते पास्टर तुमको बोलने के लिए बहुत आसान है हमारी फैमिली. अरे मेरी भी फैमिली है भाई. हम लोग की भी फैमिली भी कट्टर है भाई. कितने लोग सुन रहे हैं? In my wedding, I'm telling you, इनकी शादी में बताना चाहते हैं. they were pressurizing me. लोग कितने मुंटो लो. लोग क्या कहेंगे? तो लोग कितने मुंटो लो. लोग क्या कहेंगे? ना. Hello, are you listening right now? सर्व जमाना सुखासाठी. लोग कहें, सुखा के लिए सुखासाठी असतं ना सुखासाठी. सुखामध्ये पण असतं, दुःखामध्ये पण असतं, सगळ्याकडे असतं. They told me, उन्होंने कहा people will feel bad. लोगों को बुरा लगेगा. If I don't serve alcohol, people will feel bad. अगर शराब नहीं पेश करेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा. I don't let them feel bad. उन्होंने कहा उनको बुरा लगने दो. They will not come for wedding. Let them not come. Plate बट जाएगा.
Not correct. Really, I'm telling you. But in my wedding, the bad thing happened. We had invited only 400 people. 875 people came. There was no food. I asked Pastor Anita. We both were hungry that day. We fasted 24 hours. People came. लोग आए, Everybody was talking in the church. हर कोई कलीसिया में आके बात कर रहे, They did not serve alcohol. उन्होंने शराब नहीं दिया। Yeah, he's Father Michael. Yes, I know. Church. कलीसिया, We didn't allow the devil to come. शैतान को अंदर आने की इजाजत नहीं दी। It was a witness. ये गवाही थी। It was a witness. गवाही थी। Look at somebody, say it was a witness. जो देखकर कहा ये गवाह। Hallelujah. No. One day I love my father-in-law, okay? Next day, अगले दिन we have something called Porte Pond, Hello. Come on now. The girls' side come. My father-in-law came and said, उनके ससुर जी आए, Puta thand lagta. मुझे ठंड लग रही है। So I said, I used to call my father-in-law Papa. I said, Papa, coffee I do. तुका समझा ना रहे तुका. Hello, are you listening right now? Are you following me what I'm saying? How many of you understand what I'm मुझे saying? समझना इस वक्त। मेरे father-in-law जी बोलते हैं ठंड लग रहा है। मतलब कॉफी लेके आओ क्या? मुझे मालूम है क्या पूछ रहे हो, लेकिन वो भी बाद में समझ गए. He used to respect me a lot. बहुत ही उनका सम्मान क्या करते थे, He used to love me a lot. उनसे बहुत प्रेम करते थे। Hallelujah. I'm telling you, look at somebody and say, you shall be a witness. चलिए किसी को देखकर कहें आप गवाह Come on, बनेंगे। everybody say, you shall be a सब लोग witness. कहें आप गवाह बनेंगे। Hallelujah. Hallelujah. It will give you supernatural boldness. What is a witness? It will give you boldness to speak about Jesus with clarity and conviction. Somebody shout hallelujah. और देखिए यह आपको Yes. अल्लाह की जो साहस देगा यीशु के बारे में बोलने के लिए साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे। If you read the Fox's Book of Martyrs, how many of you read it? Write it down. अगर आप पढ़ेंगे At least you read na half. Somebody didn't open the book also. Write it down. Fox's Book of Martyrs. They used to take them in the ring. They used to take them in the ring. Children, boys, girls, men and women. They used to keep them and just say, how many of you are Christians? Put your hand up. कितने लोग मसीही हैं, अपने हाथ उठाएं। Say that Caesar is God. They would say no. वो कहते थे बोलो ऐसा, And they would sing, Jesus is Lord. और वो कहते थे यीशु ही प्रभु है। And the animals used to come. और फिर जानवर निकल के आते थे। And they used to hit the children like that with hungry animals. Read that book. It is true. और उस पुस्तक को पढ़िएगा, सच है ये। It's in Italy, the Colosseum of Rome. Anybody knows what I'm saying? It's a reality. असलियत की बात है ये। The people, you know how Rome got converted? Not by preaching. अब जब तक रोम कैसे परिवर्तित हो गया, प्रचार के जरिए नहीं। The people used to sit in the auditorium. लोग ऑडिटोरियम में बैठते थे And they used to see the lions coming. और वो देखते थे शेर आ रहे हैं। And the Christians, they would bring them, they'd pull them and bring them. And they would say, do you believe in Jesus? They would say, yes. और मसीह को लाया जाता था, बांधकर उनसे पूछा जाता था क्या तुम यीशु में विश्वास करो, तो वो कहते थे हाँ। When you read that book of Foxes, book called Martyrs, Fox's Book of Martyrs, you will cry. अगर आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप रो पड़ेंगे। It is written that they tore away the baby's head. Not swish, swish. No. See, we are used to this padded Christianity. हम ढीले डाले इस मसीहियत के लिए आदि हो चुके हैं। Please, can I talk now? क्या आपसे बोल सकते हैं अभी? We are used to this Christianity. अगर प्रभु है तो रोटी खिला, अगर प्रभु है तो मच्छी पाव खिला, प्रभु नहीं है, प्रभु तू रोटी नहीं खिलाएगा तो हम तेरे पीछे नहीं आएंगे. When you read that, I cried. जब वो पढ़ते हैं तो रो पड़ते हैं। And that's what exactly happened to Rome. और वैसा ही हुआ था रोम के साथ। Church, कलीसिया, today's Christianity is just ठंडा है. I'm telling you the truth. कह रहे हैं आपसे सच। Don't feel bad. बुरा नहीं मानना है। थोड़ा सा नौकरी हिलने लगता है तो हम लोग बोलते हैं प्रभु किधर है तू? It's written over there. The lion comes and tears away the head of the child and the mother sings, Jesus, you are Lord. शेर निकल कर आते थे, बच्चों के सिरों को फाड़ देते थे और माँ जो है गाया करती थी यीशु तू ही प्रभु है। When the people in the stadium saw this, जब स्टेडियम में के लोगों ने देखा ये, they started first laughing. पहले तो वो हंसने लगे थे, But when they went home, लेकिन जब वो घर गए they would get convicted और वे कायल हो जाते थे and they gave their lives to Jesus. और उन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया। They said, how can these people stand like that in front of a lion? It was the Holy Spirit. और वे कहते थे कैसे ये लोग भूखे शेरों के सामने ऐसे खड़े रह पाते हैं, ये पवित्र आत्मा का काम There has to be something deeper inside. और कुछ तो उनके अंदर गहराई में था। There has to be something, for that's why they are standing against the mighty Rome.
और कुछ तो उनके अंदर ऐसा खास चीज थी जिसके वजह से इतने ताकतवर रोम के सामने खड़े होते थे. This word, can I tell you what it is? The word witness. और क्या ये शब्द जो गवाह बता सकते हैं इसके The बारे में? word witness is martyr. और ये शब्द गवाह जो है इसका मतलब है शहीद. हिल गया ना? Yes. That word is martyr. और वो शब्द है शहीद. That word is martyr. वो शब्द है शहीद. That's why Paul says, इसे पौलुस कहते हैं, I no longer live, अब मैं जीवित नहीं रहा but Christ lives in me. लेकिन मसीह मुझ में जीवित है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Lift your hands and say, Holy Spirit, अपने हाथ रखा है, पवित्र आत्मा come and fill me right now. आकर मुझे भर दे. Remove this fear from my life. इस डर को मेरी जिंदगी से निकाल दे. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Some years back, कुछ साल पहले I was in Mumbai. आज मैं मुंबई शहर में. Pastor, you were there in that crusade. Kandivli. Pastor Ravi was there. And when we went on stage, there was entire place was cordoned by the. Anybody was there? Thank you. I preached with nearly 10 or 12 police vehicles over there. Behind, they were fighting with knives. पीछे वहां पे लोग लड़ रहे थे चाकू लेके. And they told me, you have to preach. और उन्होंने कहा इनसे कि आपको प्रचार करना है. Are you listening, church? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. How is it possible? कैसे ये संभव है? The baptism of the Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा. Church, कलीसिया, today I want to tell you, आज आपसे कहना चाहते हैं, the baptism of the Holy Spirit is not fake stuff. Ooh, ये नहीं है. Baptism, it is a real thing. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कोई It खोटी will चीज नहीं. remove the fear from your heart. ये आपके दिल में से डर को निकाल देगा. Lift your hands and shout a अपने hallelujah. हाथ चिल्ला हालेलुया. Raise your hand and shout hallelujah. चिल्ला हालेलुया. कितने लोग सुन रहे हैं? This is the real gospel I'm teaching you. और ये असलियत का सुसमाचार है जो आपको सिखाया जा रहा है. Are you following me, church? आप समझ रहे हैं कलीसिया? हम लोग तैयार होना चाहते हो ना? सच में तैयार होना चाहते हो? नहीं, मेरे घर वाला ने बोला इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं. अरे भैया, घर वाले क्या तेरी मक्खी भी अगर कान में फड़फड़ाएगी तो नहीं आएगा तू. Praise the Lord. क्योंकि तेरे अंदर वो सामर्थ नहीं है. कितने लोग सुन रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं आने के लिए कलीसिया में. अच्छा, तुझे बहुत कुछ लगता है रे. कल की बिरयानी तुझे खींच कर लेके जा रही है. सेकंड वन, दूसरा, विक्ट्री ओवर सिन. पाप के ऊपर विजय. बाजू वाले बोलो, पाप के ऊपर विजय. विक्ट्री ओवर सिन. पाप के ऊपर विजय. द फ्लैश कैन नॉट डिफीट द फ्लैश. देखिए, शरीर को नहीं हरा सकता. यू नीड स्पिरिचुअल फायर टू ओवरकम bondage. देखिए, आपको आत्मिक आग की जरूरत है बंधनों पर जय पाने की. Look at somebody and say, flesh cannot overcome the flesh. किसी को देखकर कहें, शरीर पर विजय नहीं हो सकता. Galatians 5:16. गलातियों की पत्री 5:16 में. See it what it says. Walk in the what? Come on. Hey, क्या हो गया रे तुम लोग का? तुम लोग आज ज्यादा फास्टिंग हो गया लगता है. Come on everybody. 1 to go. Walk in the what? Walk in the spirit. आत्मा के अनुसार चलो. आत्मा के अनुसार चलो. And you shall not fulfill the lust of the flesh. और तुम So शरीर when की you अभिलाषा को walk पूरा in the नहीं करो. spirit, तो जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, you will not fulfill the lust of the flesh. तो आप शरीर के अभिलाषा को पूरा नहीं करेंगे. Galatians 5:16. गलातियों 5:16. The third thing what the baptism of the Holy Spirit does, और तीसरी चीज जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा करता है, gives you spiritual authority. वो आपको आत्मिक अधिकार देता Say it है. everyone, spiritual authority. सभी लोग कहें आत्मिक अधिकार. Loudly say spiritual authority. जोर से बोले आत्मिक अधिकार. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Quickly, Luke chapter 10 verse 19. जल्दी से लूका का 10वां अध्याय 19वां वचन. Behold, देखो. God says, I give you authority, exousia. देखो, The word in Greek is exousia. अधिकार, वो शब्द Delegated authority. Everyone say delegated authority. वो सौंपा गया अधिकार. Do you want to know the legal term? Power of attorney. कानूनी तौर पे बताए तो पावर ऑफ अटॉर्नी. कितने लोग सुन रहे हैं? मैं नहीं जा सकता, अभी तू जा. खुदा कहता है मेरे नाम से तू जा. That's the word exousia, power of attorney. और यही शब्द आता है एक्सूसिया, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी. Legal term. ये कानूनी तौर पे. हम नहीं अंडरस्टैंड समझ रहे हैं क्या? Please, I can't teach this in vow service. To what? Trample on serpents and scorpions. और किस लिए? यहाँ पे लिखा है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का. These are demons. और ये दुष्ट आत्माएं हैं. Scorpions. ये है बिच्छू. And over all the power of the enemy. Underline that word all in your heart. All. Over what?
all the power of the enemy. और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, सारी, जोर से बोलिए, सारी सामर्थ पर क्या करता है प्रभु? अधिकार देता है। And nothing shall by any means hurt you. और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। I said praise the Lord. हमने कहा प्रभु की स्तुति हो। When Paul went to Malta. जब प्रेरित पौलुस माल्टा द्वीप पर गए, हेलो, सुनिए, किसी ने इनवाइट किया था मुझे माल्टा में, ओके, रिसेंटली, ठीक है, जब जो ओएसिस खत्म हो जाएगा ना, सब काम खत्म हो जाएगा, तो मुझे अनुमति दो पूरा वर्ल्ड में घूमने के लिए, ओके? बोलो, कुछ तो बोलो, यस तो बोला, थैंक यू, आई रिसीव इट। आपने ही बोला, ओके? आपने साइन किया, यस, या लिसन, नो, यू गिव मी द, you opened the door for me, praise the Lord. You don't know what he said. Good. Are you listening, church? सुन रहे कलीसिया? So Paul, the serpent holds him like this. हम देखते हैं सांप ने जो पौलुस के हाथ को ऐसा पकड़ लिया था, And everybody says, और सभी लोगों ने कहा गए. ये खत्म, And Paul just shakes it off. और फिर पौलुस बस ऐसे झटक देते हैं, And they change their opinion. और फिर वो अपनी राय बदल लेते They हैं, say he is a God. और वो कहते हैं ये परमेश्वर है। How many of you know that what I'm saying? He was not God. This is what is happening. देखिए यही वो वचन था। Praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो। Lift your hands and say praise the Lord. अपने हाथ रख के कहे प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. कहे हालेलुया। Today I decree and declare it shall not touch you in Jesus' आज name. ऐलान करते हैं ये चीज आपको नहीं छू सकेगी। Lift यीशु your के नाम hand में। and shout a big hallelujah. अपने हाथ में जोर से चिल्ला हालेलुया। Is anybody following me right now? कोई समझ नहीं इस वक्त? तुम्हारे खिलाफ वो चीजें भेजेंगी लेकिन तुम्हारे घर को भी टच नहीं कर पाएंगी वो। हालेलुया। अपनी आवाज को उठाकर बोलिए, जितनी तुम्हारी बुलंद आवाज है उतनी अभिषेक तुम पर आए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। कितने लोग कहते हैं आमेन? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Is this blessing you, church? क्या आप आशीष पहुंचा रही कलीसिया? The fourth one. चौथा है Operation in the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदानों में कार्यशील होना। When the baptism of the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है, the gifts start functioning. वरदान काम करने लगेंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? That is when the gifts start functioning. और वहीं पर देखिए वरदान काम करने लग जाते हैं। See, Luke chapter 4, it says, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel, to bring healing, to bring deliverance. Come on, hello, are you listening? लूका का चौथा अध्याय में देखा ऐसा लिखा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, किस लिए? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, आगे जो है चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए। कभी कभी वो बीज तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो बीज जब पवित्र आत्मा आता ना, वो बीज, कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? This is what it is. यही है Operation in the gifts. वरदानों में कार्यशील होना। It becomes clear. ये साफ हो जाता है, Healing starts happening. चंगाई होने लग जाती है, Deliverance starts happening. छुटकारा होने लग जाता है। And this is what is going to happen in our church. और यही होने जा रहा है हमारी कलीसिया में। This is what is going to happen in your life. यही होने जा रहा है आपकी जिंदगी That's में। why I'm telling everyone those are watching today. और इसलिए कहना चाहते हैं हर एक से जो देख रहे You हैं, must register for this conference on Sunday. आपको रविवार को होने वाले सम्मेलन के लिए अपना नाम रजिस्टर You करना must है। fast and pray. आपको उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए। You must say, Lord, I want this happen in my और life. आपको कहना चाहिए प्रभु मैं चाहता हूँ कि ये चीज मेरी जिंदगी में होए। In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Then see how you grow. फिर आप देख कैसे आप बढ़ते As a हैं। pastor, as a J12 leader, as a group supervisor, oh, God will start using you. एक पासबान होने के नाते देखिए, आप जेट लीडर होने के नाते, ग्रुप सुपरवाइजर होने के नाते, ओ परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। आजकल पब्लिक क्या करती है ना पता है? उनको खाली परमेश्वर अपने निजी जिंदगी के लिए, प्रभु छोकरी दे, प्रभु ने छोकरी दिया, बाद में बोलते प्रभु एक टोकरी दे, घर, कम ऑन। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? प्रभु बोलता है ठीक है भाई, छोकरी दिया, ये ले, टोकरी भी ले, चल घर भी ले। प्रभु अभी बच्चा दे। तो पूरी जिंदगी भर पब्लिक मांगते रहते हैं, दे 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 दे। कितने लोग सुन रहे हैं? तो एक बार मैं किसी को विजिट करने गया था। I had gone to visit somebody. पास में किसी को मिलने गए थे। ओके, तो वो खट्टे पैसे सो रहा था। हेलो, सच बोल रहा हूँ मैं। You can ask my team. So he was sleeping like that. वो ऐसा लेटा हुआ था। I love him very much. I used to love him very much. Very good man. बहुत अच्छे आदमी। Okay, very good man. Okay, so I told him, what do you want now? इन्होंने उससे पूछा अब आपको क्या चाहिए? He said, Brother Michael, वो कहने लगे भाई माइकल, pray that I should shake the nations. मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं राष्ट्रों को हिलाऊं। वाव मत बोलो, सुनो अभी। I told him, Nelson, अभी कि तू घर जा, अभी तेरा टाइम हो गया, जा तू घर पे। 1 hour he died. 1 घंटे में उनका देहांत हो गया। Very good man. बड़े अच्छा। On the last dead bread, you are saying, Lord, use me, reach the nations and all. No, sir. Now is the time. अभी वो समय है। Now is the time. अभी वो समय है। Somebody say, I received this word. कोई तो कहीं इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं। प्रभु तुम्हारी जरूरतों को जानता है। क्या चाहिए तुमको? घर चाहिए,
कितने खर्चे? 1 2 3 4 5। अरे थक जाओगे यार, संभालते संभालते थक जाओगे। कभी रूफ टूट गया, कभी क्या टूट गया, बाथरूम फट गया। हेलो, आर यू लिसनिंग? क्या चाहिए तुमको? 1 2 करोड़ ही चाहिए ना? चल 10 करोड़ ले चल। सी सब ये रिसीव कर रहे हैं, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट नहीं रिसीव कर रहे। 10 करोड़ बोला, आई रिसीव आई रिसीव आई रिसीव रिसीव। नो, लेट इट कम। फिर टैक्स भरने की तुमको तुम्हारे सर के बाल चले जाएंगे। अभी कुठे डालो ब्रदर, विजडम साठी प्रार्थना करा। 10 करोड़ आलेत, झोपच लागत नाहीये। आई एम टेलिंग यू, कह रहे हैं आपसे। one lady wrote to me, let it be now, I don't want to say. I'm telling you the truth, I'm telling you. She got inheritance money. उनको विरासत का पैसा मिला। Saying, brother, कसं काय करायचं समजतच नाही मला। तो कहने लगे अभी भाई क्या जेव्हा करना पैसे है? नव्हते तरच समजत नव्हतं, आता पैसे आले तरी तुम्हाला समजूत नाही आली है ना? No, really I'm telling you, एवढे she got so much money. इतना ज्यादा पैसा मिला उन्हें, She doesn't know what to do. समझ में नहीं आता क्या करें। Brother, काय करू? I want you to tell her something. No, let it be. I don't want that money, बाबा। वो 10 रुपया देगा, 100 बार बोलेगा नहीं चाहिए, प्रभु देगा। Hallelujah. No, really, people of God, do you think I would have done all these stunts? No way. I don't want that money. What God gives, I will take. Amen. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Rich people don't give money. अमीर लोग पैसे नहीं देते, It's the people who are in need, they give the money. और वे लोग जो जरूरत में होते हैं ना वही देते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? अब बड़े पब्लिक है ना, बहुत बड़े बड़े ऐसे गाड़ी है, पास्टर जी ऐसे, जितना बड़ा आवाज ना उतना कम पैसा। हेलो, यस। जो गरीब होते हैं ना बेचारे, वही दशमांश देते, वही प्रभु का घर बांधते हैं। कोई तो बोलिए आमेन। कोई तो कहे आमेन। आमेन। सच बोल रहा हूँ। एक कोई लोग इंटरनेट वाले जो बोलते हैं ना, उनको बहुत टाइम रहता है, इधर उधर फोकट काम करते हैं, बाप के पैसे से सब चलाते हैं। ऑपरेशन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वरदानों का कार्यशील होना, it will happen when the baptism of the Holy Spirit और ये तब होता है जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है। you shall see healing manifest. आप चंगाइयों को प्रकट होता Somebody say hallelujah. हालेलुया। Let me go quickly right now. Finish जल्दी से जाएंगे इस fast. वक्त। The 4th point. चौथा मुद्दा, Is this helping you, church? What is the pastor? How do I know I have received the baptism of the Holy Spirit? आज मुझे कैसे मैं Very जान सकता हूं कि interesting. मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। Today, write it down. So many people have a debate on this. देखिए बहुत से लोग इस पर जो है वाद विवाद करते हैं। Acts chapter 2 verse 4. Hurry up, please. फिर तो कामों की पुस्तक दूसरा अध्याय उसका How do चौथा I know I have received the baptism of the Holy Spirit? कैसे मैं जान सकता हूं कि मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा And they पाया were है? all filled with the Holy Spirit, and they began to speak with other tongues, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, as the Holy Spirit gave them utterance. और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। One of the evidence of the baptism of the Holy Spirit, now it is debatable, is people speaking in tongues. और देखिए एक प्रमाण कि लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, देखिए लोग इस पर वाद विवाद करते हैं, लेकिन एक प्रमाण जो है वो है कि लोग अन्य भाषा बोलने लगते हैं। Hello, are you listening right now? When you receive the baptism of the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लेते हैं, God takes away your mother tongue and gives you a father tongue. परमेश्वर आपकी मातृभाषा को ले लेता है और अपनी भाषा आपको देता है। So you are no longer Mangalorean, you are no longer Malayali, you are no longer Tamil. Hey, Tamilian, Bangalorean, Kannadiga. No Kannadiga, no Tamilian, no Mangalorean, only Shakata Bauraba Satalaba. Are you listening right now? Lift your hand and shout hallelujah. अपने हाथों का चिल्ला हालेलुया। Hello, are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त? Yes, there is no Gujarati, there is no Malayali, there is no Goan, there is only one language. कोई गुजराती, कोई मलयाली, कोई गोवन, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही भाषा रह जाती है। एक ही भाषा। जोर से बोलिए आत्मा की भाषा। सब लोग कहते हैं आत्मा की भाषा। जोर से बोलिए आत्मा की भाषा। बोले आत्मा की भाषा। You see, in Tower of Babel, God wanted to confuse the people, so उन्होंने बहुत सारे भाषाओं को लेकर। और देखिए बेबीलोन के टावर के समय देखिए परमेश्वर देखिए वहां पर लोगों की भाषा गड़बड़ी डालना चाहते थे, बहुत सारी भाषाएं आ गई And people became अलग अलग। और लोग अलग अलग हो गए थे। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोला? और मैंगलोरियन ने बोला हमारी भाषा ही बड़ी है, सब लोग आए। फिर गोवन लोग उठे। कितने लोग सुना? आमचे गोया। Come on, वो आमचे, तुझे नहीं मुझे नहीं, आमचे। सगळे लोग सभी लोग एक जो। तो भाषा जो है हमको अलग करती है, आत्मा जो है हमको एक बनाती है। Lift your hand and shout hallelujah. हमने हाथ चिल्लाया हालेलुया। हमारी बहुत सारी भाषा हो सकते हैं, लेकिन हम आत्मा में एक होना चाहिए। So the Holy Spirit, everyone say Holy Spirit. सभी लोग So कहते हैं on the day of Pentecost, you see, people started speaking in tongues. तो पेंटिकोस्ट के दिन में आप देखते हैं लोग अन्य भाषा बोलने लगे। Shapata, Kobra, Sata. That thing just came. I will talk about this. और देखिए वो चीज उनके ऊपर आई।
Are you following me right आप now? समझ रहे हैं? Today, I'm not going to pray much, but I'll pray little. As you pray, sometimes what will happen is your mother like that. You'll start doing it. That is the initial tongues. और देखिए आप ऐसे धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं और यही जो अन्य भाषा बोलने की पहल होती है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Can I give you a short definition of tongues? क्या अन्य भाषा की छोटी सी परिभाषा को Can I tell you? It'll become very easy for you. आपके बहुत आसान Write it down. लिख लीजिए, Write it down. लिख लीजिए। The human tongue इंसानी भाषा is not capable enough to praise such a big God. इंसानी भाषा में देखिए इतनी सक्षमता नहीं है कि इतने समर्थी परमेश्वर की स्तुति कर सके। अरे मैं सोचा तुम लोग कुछ तो हालेलुया तो बोलेंगे। The human tongue इंसानी जबान, is the human language. I'll put it the second sentence. इंसानी भाषा The दूसरी, human language is not capable enough to describe the greatness of God. इंसानी भाषा में देखिए इतनी क्षमता नहीं है कि परमेश्वर की महानता को बयान कर सके। Give me a scripture. I will. मुझे वचन दो। Paul says, पौलुस लिखता I है, was caught up into the third heaven, मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया and I saw such things और ऐसी चीजों को मैंने देखा which I cannot describe in words. जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। Such things he saw. ऐसी ऐसी चीजों को उन्होंने मैं देखा। क्या बोलूं यार? अरे कुछ सवाल क्या बोलूं? You see, the human tongue is incapable of describing the greatness of God. इंसानी जबान में इतनी क्षमता ही नहीं है कि परमेश्वर की महानता को बयान कर सके। That's why इसलिए God gives you a tongue. परमेश्वर को अन्य भाषा देता है। Somebody shout hallelujah. चले कोई चिल्लाए हालेलुया। Give an example. उदाहरण देते हैं, Write it down. लिख लीजिए। Is this helping you? क्या आपकी मदद हो रही है? All right. Okay. I thought, see, this is how I want to teach you. अभी संडे को स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। ये फिनिश्ड। सब लोग बोले यार क्या सर्विस थी, ये थी वो थी, बट यू विल नॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल थिंग। हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, लिसन टू दिस। सुनिए से। सपोज नाउ यू आर प्रेजिंग गॉड। मान लीजिए आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। लुक एट मी एवरीबॉडी। देखिए सो हाउ पीपल डू इट? तो लोग कैसे करते हैं? In English first, okay? Okay, so you can also do it. Father, you're holy. पिता तू पवित्र है, You are holy. You're glorious, Lord. तू महान है प्रभु, तू Ah, महिमा thank है। you, Father. धन्यवाद पिता। Now, after some time, और देखिए कुछ समय के बाद you will find yourself repeating the words. आप पाएंगे कि उन्हीं शब्दों को आप दोहरा रहे होंगे। खाली 4 जन के साथ होता है। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? अब प्रभु तू महान है, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तू क्या बोलूं यार अभी? उस टाइम पर तुम अपनी जबान को रोको मत, बोलने दो, और तुम्हारी जबान पर पवित्र आत्मा नियंत्रण रहेगा। वो है टंग्स। यही है अन्य भाषा। कितने लोग अरे ताली बजाना तो ठीक से बजाओ यार। हालेलुया। सिंपल वे, सिंपल वे। तरीका। यू आर नॉट कॉपिंग। बोल ऐसा ला 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 तो बोला ला 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 बा 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 बा। नो, ऐसा नहीं, इट इज यू एंड यू इन गॉड। ये आप और आप। इसीलिए कोई लोग है ना इंटरनेट पे उसका मजाक बनाते हैं। एक समय पर वो लोग भी टंग्स में प्रार्थना करते थे। हाँ? जिन लोगों के आप वीडियोस देखते हैं ना, वो लोग भी टंग्स में प्रार्थना करते थे। उनको मैंने सुना है टंग्स में प्रार्थना करते हुए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसका। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर, मैं उनके साथ में रहा हूं। अभी बोलते हो अरे टंग्स अन्य भाषा से वैसे। सर एक समय पर वो भी अन्य भाषा बात करते थे। प्रेज द लॉर्ड। और उनके पास भी अन्य भाषा का वरदान है, लेकिन कुछ चीजों के वजह से वो प्रभु के वचन को बेच रहे हैं। सो टंग्स रियल है, टंग्स फेक टंग्स भी होती है। कितने लोग जानते हैं 500 रुपए का नोट सच्चा नोट भी होता है और फेक नोट भी होता है, सही डॉलर भी होता है। और तो इसका मतलब फेक डॉलर है, इसका मतलब कि सच्ची को बेच देने का क्या? कितने लोग जानते हैं कि फैशन स्ट्रीट में सोना मिलता है, वो असली सोने से भी अच्छा दिखता है? Come on now, yes or no? Fake gold shines better. Come on now. Come on, all the ladies. Come on, yes or no? Hey, so nice. Ah? Fake gold it is. So there are fake tongues. तो देखिए, But you don't have to worry about that. So इसका फिक्र करने की जरूरत नहीं। remember, याद रखें, when you are with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के साथ when you होते know हैं, the word, जब आप वचन जानते हैं, God will give you the real stuff. परमेश्वर को असलियत की चीजें देगा। Hallelujah. तो जब Hallelujah. तुम बोलते हो ना, जब बोलते हो Lord I thank you, Lord I thank you, I worship you, I thank you Lord, suddenly the Holy Spirit will take over. और अचानक पवित्र आत्मा जो है नियंत्रण ले लेगा।
At the start, it may be a few words. वो देखिए भले शुरू में थोड़े से शब्द होंगे, How many of you following me right now? जो समझ रहे हैं इस वक्त? Yes. So this is the thing, church. तो ये So चीज़ है the guys. manifestation, the evidence is speaking in tongues. That is one. But the second thing, which is not debatable, is when you receive the baptism of the Holy Spirit. This is a debate over here. But when you receive the baptism of the second and the most important thing is a transformed life. और देखिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का दूसरा देखिए प्रमाण यह होता है कि जीवन जो है वो बदल जाता है, A transformed life. एक रूपांतरित The परिवर्तित earlier हुआ। person and this person totally different. पहले का व्यक्ति और ये व्यक्ति में बिल्कुल एकदम बदलाव होता है। Earlier was Saul, now you became Paul. पहले वो Hallelujah. शाऊल हुआ करता था, अब वो पौलुस बन गया है। Hey! कितने लोग are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Hello. Yes. Totally different. पूरी तरह से अलग। बोले इसको क्या हो गया? इसको क्या हो गया? इसको baptism of the Holy Spirit है. When the Holy Spirit hit me, जब पवित्र आत्मा इन पर आया, I'm telling you, कह रहे हैं आपसे, I went to chop my hair near the barber. और सलून में गए नाई से बाल कटाने, I had long hair, all. पहले लंबे लंबे बाल हुआ करते। I said, cut. He's saying, पी के आया क्या तू? I'm telling you, the barber shop closed now. I would have shown you that barber shop. So पी के आया? मैं बोला क्यों पी के आया? बोलते तेरे बाल काटेगा, तू मेरे को मारेगा फिर. Hello, are you listening right now? सर नहीं काट. सर क्या हो गया भाई? कुछ बीमारी है क्या? सर बीमार नहीं. You see, totally you will change. Look at somebody, it's a total change. देखिए आप पूरी तरह से बदल जाएंगे, जोर से बोलिए अलग ही हो जाओगे आप. अलग ही हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। That is the real evidence of the baptism of the Holy और Spirit. यही तो देखिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का एक सच्चा प्रमाण है। And the third one, और तीसरा है, three things. तीन चीजें। You will have such a hunger for His presence. आपके अंदर उसकी उपस्थिति की एक बड़ी भूख आ जाएगी। Look at somebody and say, hunger for God's presence. Hallelujah. That is a sign of a person baptized in the Holy और Spirit. ये इस बात की निशानी है कि उस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया है। How many of you say amen to that? तो कहते हैं आमीन इसके लिए। Said everyone, a hunger for His presence. See, today now people you have to tell them, come on, pray. Come on, pray. Come on, pray. Pastor बोलता है, please आ रहे intercession के लिए, आ रहे. क्या नाचना पड़ता है, गाना पड़ता है, तब जाके दो पब्लिका घुसती है अंदर. कोई लोग छुपते हैं. पास्टर ने देख लिया तो. No, I'm telling you, कह रहे हैं आपसे, they don't have the hunger for the Holy Spirit. उनके अंदर पवित्र आत्मा के लिए भूख नहीं है। उनको बोलो फुटबॉल मैच देखने के लिए पूरा रात भर देखेंगे. I'm telling you, church. कह रहे हैं आपसे कल। But when the baptism of the Holy Spirit comes, लेकिन जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है, I'm telling you, we were young boys. नौजवान लोग, We were young boys. हम नौजवान थे, We used to, when the baptism of the Holy Spirit hit me, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इन पर आया, we used to pray the whole night. पूरी रात में प्रार्थना में लगे रहते थे। Whole night praying. Shabrata kaba. Down that uncle used to come. Are pura re. This uncle was John uncle. Gelo bicharo. Hele low kar raha hai. Just slowly. Then my leader used to say, "Kita karcha uncle? Uzo yata re. Uzo sakeli yata re baba. Mi nidlat." Hello. It's a conquering gospel. Hallelujah. Are you listening right now? He used to say, fine, fire is coming on top, but fire is coming down also. I am sleeping. और वो कह रहे थे ऊपर आग आ रही है, ठीक है चलो, लेकिन आग नीचे भी आ रही है और मैं यहाँ सो रहा हूँ। Hello, are you listening right now? But we fellows were crazy. And suddenly one fellow got a drum from somewhere. That John uncle used to take a shot and sleep then. Are you listening? आप सुन रहे हैं? Today's young people, they don't want. आज के नौजवान लोगों को नहीं चाहिए। If some little girls and all that, then that's हम लोग आता है. There are no girls, no boys, nobody comes nowadays. They tell their mother they're going for prayer, they're roaming somewhere at bandstand. वो अपने माँ से कहते हैं कि That is the baptism of the Holy Spirit. But in our time it was different. We were sold out. एकदम बेच दिए गए थे प्रभु के लिए। We are crazy. प्रभु के एकदम दीवाने हो गए थे। Hello. We were at the station. स्टेशन पे जाते। यीशु आपसे प्यार करता है. एक बार टीसी ने बोले उठा यहाँ से, तेरी तो उठा के वापस दूसरे जगह में गया, उधर बांटने लगा. Are you following me, church? We were crazy. वैसे पागल थे। One day I went knocking with the tracks at somebody's house. Once somebody spat at me. I wiped it and went to the next door. I'm telling the truth. They did two on me like this. I wiped it. Really, I'm telling you.
थूके पोछे और चले गए आगे। I felt a joy. एक आनंद, एक खुशी महसूस I हुई, felt a joy. एक आनंद महसूस हुई। Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहा है यहाँ पर? Everyone say hunger. सब लोग कहे भूख, Everyone say hunger. सब लोग कहे भूख, जोर से बोलिए hunger. जो से कहे भूख। Hallelujah. हालेलुया। And the last one, what are the hindrances? Pastor, ठीक है, I want to receive. What are the hindrances? Write it down, first one. What are the hindrances? क्या Fear. रुकावटें हैं? डर। Fear. Is it from God? क्या परमेश्वर की ओर से है? Said, oh, Holy Spirit of God, किया है baptism सच्चा है क्योंकि मैंने Facebook पे देखा था वो बोल रहा था ऐसा है, वो बोल रहा था वैसा है, क्या पता है इसका ऐसा है? Write it down, church. लिख लीजिए। I'll give you a scripture. Luke chapter 11 verse 13. लूका का 11 अध्याय उसका 13 If you know how to give good gifts to your children, अगर तुम जानते हो कि अच्छी वस्तु अपने बच्चों को देनी, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? Hallelujah. हालेलुया। If you're asking from the Father, देखिए, अगर आप पिता से मांग रहे हैं then you will receive the good things. तो अच्छी चीजों को आप पाएंगे। Lift your hands and say, मैं पिता से मांग रहा हूं। बाजू वाले को बोल, तेरा क्या प्रॉब्लम है? जब हम पिता से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, तो भली वस्तु ही मिलेगी हमको। कितने लोग बोल रहे हैं हालेलुया? अपने हाथों को उठाए, अगर हाथ लेकर आए तो हाथ को उठाए, नहीं तो किसी दूसरे का तो हाथ उठाइए। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। अब सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? So you're asking the Father, तो आप पिता से मांग रहे हैं, Father, I need the baptism of the Holy Spirit. पिता मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। So what the Father will give you the good thing only. तो जो पिता जो है आपको अच्छी चीजें ही देगा। You're not asking for me. आप इंसान से नहीं मांग रहे। If you're asking for me, आप इनसे मांगेंगे that's another story. तो दूसरी कहानी होगी। But if you're asking from the Father, लेकिन अगर आप पिता से मांग रहे may हैं God give you good things. तो परमेश्वर को भली चीजें दे। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम Lift में your hand and shout a hallelujah. अपने हाथों से जोर से चिल्ला Raise your hand and say, Holy Spirit, I need you. अपने हाथों में पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। Lift your hand and say, Holy Spirit, I need you. अपने हाथों में पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। Raise your hand, raise your hand, raise your hand. अपने हाथों में पवित्र आत्मा मुझे Begin आपकी to जरूरत है। pray 7 times, Holy Spirit, I need you. और 7 बार बोले पवित्र आत्मा मुझे आपकी Begin जरूरत to है। pray, begin to pray with all your heart. चलिए प्रार्थना करें अपने पूरे दिल से। Begin to pray, begin to pray. चलिए प्रार्थना शुरू The करें। second thing दूसरी चीज that hindrances to receiving the baptism of the Holy Spirit, और जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाने से रोकता है pride. वो है घमंड। Pride says, घमंड कहता है I don't need this. मुझे ये नहीं चाहिए। The third one, तीसरा है unbelief. वो है अविश्वास। Look at somebody, say unbelief. बोले है अविश्वास। Hey, जोर से बोलिए unbelief. And the fourth one, और चौथा है, this is the most dangerous thing, ये बहुत ही खतरनाक, unconfessed sin in your life. आपके जीवन में से पाप जो कबूल नहीं किए गए हैं। The sin that, what is the meaning of unconfessed sin? Unconfessing, it does not mean you have to confess your sin, 1948 I did this, 1967 I did this, 1973. No, it's not that. What it means is the sin that you have not given to God. इसका मतलब ये है कि वे पाप जो आपने परमेश्वर को नहीं सौंपे हैं। Lift your hands and say, Lord, अपने हाथ रखें, प्रभु you know everything about me. आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हो प्रभु। प्रभु मैं अपने सारे कमजोरियों को तेरे हवाले करता हूं। Now, come on, are you following me, church? Yes. That when you come before God with this attitude, देखिए जब आप परमेश्वर के सामने इस रवैये के साथ आते हैं, God, I need it. परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत I है, need your grace. मुझे आपके अनुग्रह की I जरूरत है, need your mercy. आपकी दया चाहिए। Hey, hallelujah. हालेलुया। खुदा आपको bless करेगा. There were 2 people praying, the Bible says. बाइबल कहती है 2 लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक आदमी घमंडी था, बोले प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं 3 घंटे रोज, हालेलुया। प्रभु मैं टाइट देता हूं, प्रभु मैं ऐसा करता हूं, पास्टर माइकल के बाजू में रहता, चर्च में आता हूं, प्रेज द लॉर्ड। घमंडी था वो। दूसरा कहता है प्रभु मैं कुछ भी नहीं, प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे बुलाया, और उस पर अनुग्रह आता है। प्रभु आप पर अनुग्रह करे आज। May God give you favor today. परमेश्वर आज आप पर अनुग्रह करे। Favor today. Lift your hands and say, I receive अपने this. हाथ उठाकर Say it everyone, I receive this. सब लोग मैं ग्रहण करता हूं, I receive this. मैं इसे ग्रहण करता हूं। Is anybody listening over here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? And the last one I want to tell you. और आखिरी जो है, Now this baptism of the Holy Spirit is not a one-time event. देखिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना ये एक बार का कोई हुआ वाकया नहीं है। Okay, now I received the baptism of the Holy Spirit many years back. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है कई साल पहले पाए। Okay, I write it in my book, in the Bible. How many of you read my book, Speaking in Tongues? कितने मैंने पढ़े Okay. पुस्तक? Please, I want you to get that book. चाहते आप उस पुस्तक को लीजिएगा। My son has been after me, Dada, write books. I want to write. I want to finish the books. If you give me, after this Oasis, now, 1 month, I'll bring over all the 50 books.
My priority is the Oasis now. Let me finish it. Let me finish it. Hallelujah. Let me finish it. Please help me to finish it. Praise the Lord. So, you see, तो आप देखते हैं that day the fire came on my body. उस दिन इनके शरीर पर आग उतर आई. That doesn't mean I stopped. इसका मतलब ये नहीं कि वहीं रुक गए. Hello. Last year, पिछले साल we fasted for 150 days. 150 दिनों तक हमने उपवास किया. How many days? कितने दिन? 150 days. I was fasting for 150 days. 150 दिन तक उपवास में थे. Yeah. Many people say, now, how, oh, this name, that name, how this, like that. It was like that. Shocked, right? चौंक गए. Yes. So every day fasting and praying. हर दिन उपवास Fasting and praying. My wife used to tell me, stop. I said no. The Lord has told me. Now, if God has not told you, don't try it. अगर परमेश्वर आपसे नहीं कहा है तो आप उसे आजमाने की कोशिश Supernatural strength would come. I used to get up in the morning early, pray. और अलग Supernaturally. अलौकिक तौर पे. That's how majority of the work happened. और इसी तरह से अधिकतम काम जो होता है. Hello, praise the Lord. If you have not fasted, I want you to begin to fast, pray. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 4 days बाकी है. बाजी वाले को बोल 4 दिन बाकी है. ए जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल. कितने लोग उपवास कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं. जो लोग नहीं कर रहे मेरे साथ जुड़ जाइए. मरोगे नहीं आप. अरे 4 दिन. हाँ? नहीं मरोगे आप. मरोगे तो Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. अभी पब्लिक और डर गई है. You know, those are watching. जो देख रहे हैं Join with us. जुड़ जाए साथ में. Join with me. Four days. Those who are attending the conference, you must join with me for 4 days of fasting and prayer. और Why? अगर उपवास पालन Fasting does not change God. देखिए उपवास करना परमेश्वर नहीं बदलता है. It changes ये us. हमें बदलता है. Said everyone changes us. सब लोग हमें बदलता है. So this baptism of Holy Spirit, Pastor, अगर मुझे Sunday को baptism of the Holy Spirit मिला, so after that means I don't have to do anything. तो इसका मतलब कि अगर रविवार को आपको पवित्र आत्मा बपतिस्मा मिल गया तो उसके बाद कुछ नहीं करना है. No, there is. नहीं करना Write है. it down. Go to Ephesians 5:18. जाएंगे इस समय इफिसी की पत्री 5वां अध्याय 18वां वचन. We close for today. Ephesians 5:18. Said everyone, be filled with the Spirit. Said everyone, be filled with the Spirit. In the Greek, it means be continually be filled with the Spirit. और यूनानी भाषा में इसका मतलब यह होता है कि निरंतर पवित्र आत्मा से भरते रहो. I like that word. निरंतर. सर्वोच्च म्हणा निरंतर. सभी लोग के निरंतर. निरंतर बरोबर. हाँ निरंतर अगदी बरोबर. एकाच वेळे पाणी संपूर्ण वर्षाचं पाणी पिऊ नका. पोट फाटून जाणार आहे. हाँ? कानातून पाणी बाहेर येणार आहे. सगळ्या वर्षाचं पाणी एकदाच पिऊ नका. तोंडातून पाणी येणार आहे. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. You will not be able to walk. आप चल फिर नहीं But पाएंगे. what you do is you keep on saturating your body. लेकिन क्या है आपको लगातार उसका सेवन करते रहना है. Guess what? सोचिए जरा. Said everyone, be filled with the Spirit. सब लोग कहे पवित्र आत्मा से भरते रहो. See what it says. The Greek is being filled continually. I like that. Thank you, media. Greek tense. That is the Greek. ये देखिए यूनानी भाषा में है कि Be filled continually. Everyone say continually. पेड़ को एक ही बार पानी नहीं देता. ड्रम में ले डाल दे पूरे साल का पानी. ले पी ले पेड़ तू. पेड़ मर जाएगा. लेकिन रोज पेड़ बड़ा होता जाएगा. बाजू वाले को बोलो be filled. Everybody lift your hands and say be filled. सब लोग अपने हाथ उठा कहे Hallelujah. Today we are going to pray. आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं. Pastor, I need the baptism of the Holy Spirit. पास्टर जी मुझे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत है. I need it, Pastor. मुझे What चाहिए. can I do? क्या मैं कर सकता हूँ? Today you have to pray. आज आपको प्रार्थना करनी है. How you have to pray? कैसे आपको प्रार्थना करनी है? Don't open your eyes. अपनी आंखें ना खोलें. Hello. इधर देख. Don't open your eyes. अपनी आंखें नहीं खोलना है. Because ये आंखों से आप distract होते हैं. Just go deeper in the Spirit. बस आत्मा की गहराई में जाते रहे. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Go deeper. Don't stop. रुके Second. नहीं है. Don't stop. Come on, everybody say don't stop. सब लोग कहे रुको ना नहीं. Don't stop. रुकना नहीं. कोई चिल्लाएगा तो हम लोग देखते हैं उसको क्या हो गया. Don't stop. Everyone say don't stop. सब लोग कहे रुकना You are नहीं. on a journey. Don't stop. आप एक यात्रा में है रुकना नहीं. जितना आप रुकोगे उतना तुम उन मंजिल पर देरी से पहुंचोगे.
Just worship the Lord. Just worship the Lord. वो अभिषेक आप पर आएगा, अभिषेक आप पर आएगा, अभिषेक आप पर आएगा. And whatever you're doing, you do it in faith. Everyone said, do it in faith. जो भी आप करते हैं आप Everybody said, do it in faith. विश्वास से करें. God is going to touch you right now. परमेश्वर आपको छूने जा रहा है. You may be pastor, you may be master, you may be anybody. Hallelujah. आप कोई भी क्यों ना हो. Today you must begin to cry out to the Lord. आज आपको परमेश्वर पुकारना चाहिए. You must begin to cry out to the Lord. परमेश्वर पुकारें. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Lord. Thank you, Father. Look at me. I close. देखिए यहाँ पर. I close. My pastor used to say this, इनके पासवान जी कहा करते थे. and I quote my pastor. He's with the Lord now. वे प्रभु के पास चले गए. वो हमेशा बोलते थे, भूखे आदमी को तुम खिला सकते हो, लेकिन जिसका पेट भरा है उसको खिलाओगे तो उल्टी करेगा. The best way to receive from God सबसे बेहतरीन तरीका परमेश्वर से पाने का is to say, Lord, वो ये कहना है, प्रभु be hungry. Say, God, मुझे तेरी जरूरत है. बोले प्रभु मुझे आपकी जरूरत है. कितने लोगों को प्रभु की जरूरत है? अगर प्रभु की जरूरत नहीं है तुमको ना, तो कोई तुमको भर नहीं सकता है. प्यासे को पानी चाहिए, भूखे को भोजन चाहिए. अगर तुम्हारी आत्मा सारी चीजों से भरी हुई है तो वो आप भूखे नहीं है. हालेलुया. हालेलुया.